हेलो डियर स्टूडेंट्स, टॉक मैथ्स चैनल पर महेश्वरी सर फिर से आपके सामने है एक नए टॉपिक के साथ। स्टूडेंट्स, पिछले वीडियोस में हमने देखा रिलेशंस और फंक्शंस के बारे में पढ़ा था और उसमें फंक्शंस में मैंने आपको काइंड्स ऑफ फंक्शंस बताए थे कि फंक्शन 1, 1, ऑन टू और बाइजेक्टिव किस तरह से प्रूव करते हैं। आज उसी में हम एक नेक्स्ट टॉपिक की तरफ पढ़ रहे हैं फंक्शंस में, और वो है कॉम्पोजिट फंक्शंस। कॉम्पोजिट फंक्शंस डिफरेंट टाइप ऑफ फंक्शंस आप पहले भी पढ़ चुके और जानते भी हैं। एल्जेब्रिक फंक्शन, कांस्टेंट फंक्शन, मॉड्यूलस फंक्शन, सिग्नम फंक्शन, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक, लॉगरिथमिक, different type of functions are there. In all these functions, it is basically an association between two variables by h function of x. जब हम ऐसा बोलते हैं x is independent variable, y is dependent variable. sin x फंक्शन हो गया, x स्क्वायर प्लस 3 फंक्शन है, log x फंक्शन है। अब कॉम्पोजिट फंक्शन क्या है? ये कॉम्पोजिट फंक्शन कोई एक नया कंसेप्ट नहीं है। डिफरेंट टाइप के अगर हमको फंक्शंस गिवन है, जैसे सपोज f इज ए फंक्शन a to b, g इज अनदर फंक्शन b to c। अब a as we know it is domain, b codomain, b domain for g and c codomain। This is x and we know for this f, this is fx, x y जैसे बताया था मैंने पहले भी, x fx जो वैल्यू उनको मिलती है। नाउ दिस इज सेट a एंड दिस इज सेट b। नाउ फॉर g this b is domain. Since b is domain, it means all the elements of b will be associated and having its image in C. This is set C, and when we say that function from a to b is f and from b to c is this g, this is actually g, and here we are getting the range, or you say image of all these elements which we are getting are actually g of fx. This is x, this is fx, this is fx. Fx all the elements that are in b, and for the function g, this is actually g of fx. So from a to c, if you see, it is actually f of gx, and this f of gx also known as fog. So what this fog is? Fog is a composite function. So when f is a function a to b, g is a function b to c, then this is not actually fog, it is gof. This, see, g of fx, this is actually g of fx. So this is gof. Gof is a function a to c. So domain for this gof is a and codomain c. F is a function a to b, g is a function b to c, then gof is known as a composite function a to c. Suppose in place of a and b, we are given function like this. F is a function r to r, g is a function r to r. Then both fog, gof are well defined. Fog, composite function for f of gx, composite function g of fx. Now for different functions, how can we find these composite functions? If fx and gx are given,
देन हाउ कैन वी फाइंड एफ ओ जी एंड जी ओ एफ, जिसको हम बोल रहे हैं कॉम्पोजिट फंक्शन। देखिए फंक्शंस हमें गिवन होंगे, वो फंक्शंस कोई भी फंक्शन हो सकता है, एल्जेब्रिक है, अभी हम सिंपल एग्जांपल लिख ले रहे हैं एल्जेब्रिक फंक्शन का ही। f is a function r to r, g is a function r to r with fx equal to say x square plus 2 and gx equal to say x plus 1। देखिए fx अपने पास एक फंक्शन है, कौन सा फंक्शन है ये? एल्जेब्रिक फंक्शन या पॉलिनोमियल फंक्शन जिसको कहते हैं। gx दिस इज आल्सो ए फंक्शन x plus 1। अब यहां हमको फाइंड करना है FOG। FOG क्या हुआ? FOG इज ए कॉम्पोजिट फंक्शन। दिस इज फंक्शन ऑफ x। फंक्शन ऑफ x में क्या होता है, जो भी वेरिएबल जो फंक्शन है उसमें वेरिएबल x है। अब हम जब FOG की बात करते हैं तो इसका मतलब f ऑफ g, fx इज x स्क्वायर प्लस 2। अगर मैं पूछूं अभी कि भाई व्हाट विल बी f3, तो f3 क्या बताएंगे? 3 स्क्वायर प्लस 2। मैं पूछूं fm, इट विल बी m स्क्वायर प्लस 2। सिमिलरली FOG इज एक्चुअली f ऑफ g। So initially we can write in place of x we can put g, so it is g square plus 2। धीरे धीरे आगे चल के g पुट करना बंद कर देंगे, डायरेक्ट g की वैल्यू रखेंगे। तो g स्क्वायर प्लस 2, व्हाट g इज x प्लस 1 होल स्क्वायर प्लस 2। सॉल्व कर देते हैं इसको, x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 प्लस 2, इट इज x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3। x square plus 2x plus 3, this is FOG। Now f is the function r to r, g is the function r to r, FOG is also from r to r। Now what will be GOF? Let us find। GOF actually means g of f, g of f। Now what gx is? gx is x plus 1। What will be g of f? g of f will be f plus 1। So what f is? x square plus 2 plus 1। देखिए हम बोले fx या f, सेम एक ही बात है। हम कहते हैं f इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2, fx इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2। वेरिएबल की बात है कि भाई fx बोल दिया, इसी को हम अगर कहें fy तो fy हो जाएगा y स्क्वायर प्लस 2। सो इट इज x स्क्वायर प्लस 3। तो इन जनरल वी ऑब्जर्व दैट FOG is not equal to GOF। ये भी एक कंफ्यूजन आ गया अपने पास कि FOG और GOF सेम नहीं होते। अच्छा, जरूरी नहीं FOG GOF यही फाइंड करना हो, कभी कह देते हैं भाई FOF बताओ क्या होगा, FOF फाइंड कर सकते हो। FOF का मतलब f of f, f of f this is fx, f of f is f square plus 2 और f की वैल्यू रख देते हैं हम। What is f? It is x square plus 2। In place of f, put x square plus 2। x square plus 2 whole square plus 2, that is x power 4 plus 4x square plus 4 plus 2, so it is x power 4 plus 4x square plus 6। This is FOF। अब इसको हम ऐसे बोल देते हैं FOF of x। Same, we can find GOG। अभी हमसे कहा FOG, FOG हमने फाइंड किया। इसमें ये भी कहते हैं कि फाइंड FOG एंड फर्दर इवेल्युएट, सपोज फर्दर इवेल्युएट FOG of 3। तो FOG of 3, FOG सिंपल FOG बोल रहे हैं, FOG of x एक ही बात है। तो FOG is x square plus 2x plus 3। FOG of 3 will be 3 square plus 2 into 3 plus 3, so it is 80। तो ये तरीका है कॉम्पोजिट फंक्शन फाइंड करने का। एक एग्जांपल देखते हैं। ये हमने लिया था एल्जेब्रिक फंक्शन का एग्जांपल। Question is, suppose
plus x. If x is greatest integer x, both the functions are from R to R, domain R, codomain R, domain R, codomain R. fx equal to greatest integer, gx equal to for particular value composite functions देखिए इसका फाइंड करते हैं. हमसे कहा जा रहा है कि फाइंड f o g of say 5/2. f o g of 5/2 इसका क्या मतलब होता है भाई? इसका मतलब होता था f of g of 5/2. Is it? f o g का मतलब f of g. f o g of 5/2. f of g of 5/2. That is f of. Now, what is g of 5/2? Modulus of 5/2. What is modulus of 5/2? That is 5/2. Now, what is f of 5/2? f of 5/2 का मतलब f of 2.5 और greatest integer 2.5. Value is 2. If it is asked find GOF of minus 3/2, GOF of minus 3/2 equal to G of f of minus 3/2. G of, now what is f of minus 3/2? Minus 3/2 greatest integer function. Minus 3/2 greatest integer function. So g of, now what is greatest integer minus 3/2? It is greatest integer minus 1.5. greatest integer function हम जानते हैं, नाम इसका greatest integer function है, but the value is less than or equal to in integer form. क्लोज टू दिस, इसके क्लोज जो इससे लेस इंटीजर हो, तो माइनस 1.5 से लेस इंटीजर दैट इज -2. सो व्हाट इज g of -2? g of -2 इज मॉड्यूलस ऑफ -2 दैट इज 2. तो अभी पीछे हमने पिछले क्वेश्चन में देखा था कि FOG और GOF दे आर नॉट इक्वल. यहां भी एक वेरीफाई कर लेते हैं कि FOG of -3/2 भी फाइंड करके देख लेते हैं. तो FOG of -3/2, f of g of -3/2, f of, now what is g? G is modulus function. So modulus of -3/2 it is f of modulus of -3/2 it is 3/2. f of 3/2 means f of 1.5 और f 1.5 means greatest integer 1.5 और greatest integer 1.5 की value 1. So we observe that GOF of -3/2 is not equal to FOG of -3/2. तो FOG और GOF चाहे इन जनरल हो या कोई पर्टिकुलर वैल्यू के लिए हो, दे आर नॉट इक्वल. दिस इज द कंक्लूजन बाय दीज टू एग्जांपल्स. FOG GOF अलग अलग हैं, दोनों सेम नहीं है. सेम इसमें भी GOG FOF जो भी कहा जाए वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं. ये रहा कॉम्पोजिट फंक्शंस के बारे में. नेक्स्ट अब आगे हम बात करेंगे वो इनवर्स ऑफ ए फंक्शन. रिलेशंस एंड फंक्शंस में जो टॉपिक्स हैं उसमें पहले तो रिलेशंस में ये प्रूव करना कि गिवन रिलेशन इक्विवेलेंस रिलेशन है, वो पहले हम बता चुके हैं. उसके बाद काइंड्स ऑफ फंक्शंस में ये बताना कि फंक्शन इंजेक्टिव, सर्जेक्टिव, बाइजेक्टिव है, वो हम देख चुके. इसके बाद आता है कॉम्पोजिट फंक्शंस के बारे में मैंने बताया. उसके बाद है नेक्स्ट इनवर्स ऑफ ए फंक्शन. इनवर्स ऑफ ए फंक्शन से हम किस तरह से f इनवर्स ऑफ f, वो इनवर्स ऑफ फंक्शन क्या है, कैसे निकालेंगे, वो हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे. तो ऐसे ही ये टॉपिक और टॉपिक देखने के लिए वीडियो को लाइक करते रहें, शेयर करते रहें, सब्सक्राइब करें.